आज मैं बताने वाला हूँ राकेश झुनझुनवाला के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। बट उनके ट्रेडिंग सेटअप के बारे में बताने से पहले आपको मैं एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, और जो वीडियो मैं दिखाने वाला हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहां से भी जाके पूरा फुल वीडियो देख सकते हैं। बट पहले ये देखिए। I'll say in colloquial and then translate it in English. It says વધારે લેવાનું, ઘટાડે વેચવાનું. That means buy as the market is rising, sell as the market is falling. What is the wisdom in that, and how do you use it? See, Ramesh, 20, I don't think for a good trader, I think we don't initiate more than 40% of trades which are right. Right, suppose I'm bullish, say on XYZ stock. Now I buy that stock. If it goes up, it's an indication of the fact that I'm right. So what are markets, what is trading? It's basically momentum. So you play momentum. So if the market is rising, its momentum is upwards. So you buy on the rise. If markets are going down, you sell on the fall. So you should never average a losing trading position. Well, at your own cost. Never. At least I never do it. That's a huge mistake, isn't it? Unless and until we believe suppose I buy a stock at 90 and I feel it's going to have a big upside, and the fall is 4-5%, I might average. Or temporary. But as a rule in trading, I will never ever average. You want to trade, you trade. Trade is for creating capital. Investment is for growing that capital. Don't confuse them. Right? Because in trading the risk is extreme. In investing wealth, the risk is not extreme. See, most people say they are investing, but actually their mind is of a trader. That they want to create, you can create unimaginable return in trading. If you get on debt 6% return, your target should get 15 to 24% return on equity, right? And don't involve yourself in all this daily gambling, where stocks go by 40% and 50% every day. I think, and life is about attitudes. So the mature attitude is to invest safely, give your money to experienced people to invest, to mutual funds, to fund managers, and expect a return which is reasonable. Sure. Don't forget this. I used to have a drink in Jeffries. Some pretty girl will come and ask me that what do you buy? I tell her buy XYZ. If you tell her, she'll ask me what return I'll get. I'll say it will double in 3 to 4 years. Only I give her the address of the Mahalakshmi race course. So the first thing is everything in life is about maturity. And don't start go on scaling your bets. जैसा कि आप वीडियो देख चुके हैं, आपको पता तो चल गया होगा, जब मार्केट नीचे जाता था वो सेल करते थे, जब मार्केट ऊपर जाता था वो बाय करते थे। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है होल्ड करना। वो कभी कभी कुछ महीने तक होल्ड करके रखते थे, कभी कभी कुछ साल तक होल्ड करके रखते थे, और वो हमेशा मना करते थे कि इंट्राडे कभी नहीं करना चाहिए। बट इसका ये मतलब नहीं कि इंट्राडे से आप कमा ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत लोग हैं जो इंट्राडे से भी कमा रहे हैं। मैं इस वीडियो से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेटअप सबका अलग हो सकता है, तरीका सबका अलग हो सकता है, बट जो मेन चीज मैटर करता है वो है प्रॉफिट। अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है तो वो तरीका आपके लिए सही है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि इंट्राडे मत करो, अब बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि इंट्राडे करो, उसमें प्रॉफिट है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है जो इंट्राडे से कमा रहे हैं वो बोलेंगे इंट्राडे करो, और जिनको इंट्राडे से प्रॉफिट नहीं हो रहा है वो बोलेंगे इंट्राडे मत करो। और ये सही भी है। अगर आपको इंट्राडे से प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आप नहीं समझ पा रहे मार्केट को, तो फिर आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इंट्राडे करने के लिए एक्सपीरियंस, आपका सेटअप और रोज मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप इंट्राडे कीजिए ही मत। और इंट्राडे में सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका एक्सपीरियंस। जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा उतना अच्छा से आप इंट्राडे कर सकते हैं। इस वीडियो से मैं आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि स्ट्रैटेजी सबका अलग हो सकता है, तरीका सबका अलग हो सकता है, बट जो मैटर करता है वो है प्रॉफिट। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है आपके सेटअप से तो फिर उस सेटअप को आप रखिए और यूज कीजिए। बट अगर आपको उस सेटअप से प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो फिर वो सेटअप को रख के कोई फायदा नहीं है। अपना सेटअप और अपना तरीका चेंज कर दीजिए। अगर राकेश झुनझुनवाला को प्रॉफिट स्टॉक होल्ड करने में हो रहा है तो वो क्यों इंट्राडे करेंगे? उनको नहीं जरूरत है इंट्राडे करने का, क्योंकि जो मैटर करता है वो है प्रॉफिट। और जिसे इंट्राडे में प्रॉफिट हो रहा है वो क्यों स्टॉक को होल्ड करेगा? वो नहीं करेगा स्टॉक होल्ड, क्योंकि उसे इंट्राडे में प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए मैं बोलता हूं कि तरीका सबका अलग हो सकता है, सेटअप सबका अलग हो सकता है, बट जो मैटर करता है वो है प्रॉफिट। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो अपने सेटअप को कभी चेंज मत कीजिए, और अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उसके पीछे रीजन जानने की कोशिश कीजिए और अपना सेटअप और तरीका चेंज कीजिए। अब इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।